I have only 4 questions which I am going to cover today. Now, if we see, if I show you, these are the 4 questions we have. This is question number 32, then 33, then 34. Up 34 ka we have 2 parts, one this and one this. Then 35 and then we'll finish it off. And these are 5 marker questions, तो थोड़ा सा lengthy है, but we'll try to cover it as soon as possible. इस वीडियो को थोड़ा छोटा ही बनाएंगे ताकि जल्दी से खत्म भी हो जाए और आप लोगों को भी समझने में इसको easy रहे. Now, if we move on to question number 32. Now, if you see this question, हमें क्या दिया है? We are given matrix A. You need to find A inverse first of all. अब देखो बच्चे इसमें कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि वो यहाँ से पहले A इनवर्स निकालेंगे और उसमें लिखा है हैंस और. देखो बेटा, जब भी हैंस लिखा है, हैंस का मतलब है कि आपको इस तीनों चीजों को सॉल्व करने के लिए इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी जो ऑलरेडी आपको गिवन है. बात समझ? हैंस का मतलब यही होता है. इसमें बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे A इनवर्स निकाल दिया, फिर इसको A, B और X की फॉर्म में लिखेंगे और फिर से उसका A इनवर्स निकालेंगे एंड देन they will find X, Y, Z, which is totally a wrong method. तो स्टार्ट करते हैं कि करना कैसे बेसिकली. अब सबसे पहला काम है, इसमें हमें क्या निकालना है? A इनवर्स. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ A इनवर्स? A इनवर्स की अगर हम बात करें, A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एवरीबॉडी नोज दिस. एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A. एंड द कंडीशन इज योर डिटर्मिनेंट ऑफ A should not be equals to 0. ठीक है. सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट A इनवर्स फर्स्ट ऑफ ऑल. तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A की. हाउ डू यू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A? ये बहुत सिंपल सी चीज है, मैंने बहुत बार सिखाई भी है और मैं फिर से सिखा देती हूँ. डिटर्मिनेंट कैन बी फाइंड आउट यूजिंग एनी ऑफ द along any of the column or any of the row. ये these are your vertical are your columns and the horizontally we call them row. So I'm using first row and first column. So along first row and first column, along first element rather we can say, I'm finding my determinant. So how will you find it? कैसे निकालते हैं? Just take your first element first of all and जो भी आपके पास, now we are left with just this 2 cross 2 matrix. तो आप इसको क्या कर देंगे? Just take multiplication of this and then do like this. So it will be minus 12 and minus of minus 6. So it will be plus 6. Similarly, अभी इसका हो गया along R1 we are finding this. आप क्या करना है? आपने इसी रो के along लेना है, but this time column will be this much. तो अब हमारे पास क्या बचता है? minus 2 of this element, this and this. तो अब क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा minus 8 और वो देगा प्लस का 9. नोट रादर माइनस का 9 बिकॉज माइनस माइनस के देगा प्लस और ये है प्लस माइनस का 9. नाउ इफ यू सी द नेक्स्ट वन, व्हाट वी आर लेफ्ट विद. अब हमारे पास बचता है ये वाला एलिमेंट जिसके लोग हमने अब इसे लेना है, ये वाला. सो इट विल बी minus 3 ऑफ व्हाट वी हैव नाउ. जस्ट वेट. सो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? दिस वॉज 2, 3, minus 3 and 2. So this will give me what? अब इसके along करेंगे इस तरीके से. Now 2 into 2 is 4, minus minus plus, this will be 9. So what we are left with? If I simplify it, it will be minus 6. This will be minus minus 17 plus this. So 17 plus 2, this is 34. And then we are left with what? Minus of this is 13. So how much you left with? I think I have done something wrong. No? 1 of this is minus 12. Minus minus this plus 6. Then minus 2 of. Then we have done this is minus 8 plus 9. So minus 9. This is minus 3 of. Sorry, this was plus 3. Sorry, this is plus 3. देख के पता चल जाता है बेटा क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ हुई है. नाउ प्लस 3 ऑफ दिस इज 13. 13 into 3 is 39. So how much we are left with? The determinant will be what? अब इसको अगर आप करेंगे this will be 34 and plus how much? 33.
So we are getting the determinant as 67. So this will be first of all the first step, जिसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, यहाँ तक आपको 1 नंबर मिलेगा. एंड इफ यू सी दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो दिस इम्प्लाइज, अब लिखते कैसे हैं, लिखने का मेथड भी आपको आना चाहिए. So this implies by A determinant is not equals to 0, so A inverse exist. A inverse exist. अब A inverse exist निकालने के बाद now you need to find out your adjoint of A. Now adjoint of A also we have done कि आपको निकालना कैसे है. चलिए कैसे निकालते हैं adjoint A, सिखाया हुआ है फिर से आपको. इसी मैट्रिक्स को आपने देखना है, इसी को. Now take फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो एलिमेंट, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ले लेना है एंड क्रॉस देम. अगर आप इन दोनों को क्रॉस कर देंगे तो क्या बचेगा आपके पास ये बचेगा. तो इसका जो भी माइनर आएगा, माइनर कितना आएगा, दिस वी हैव, मैं करवा चुकी हूँ, इसको मैं फिर से क्लास में डिस्कस करूंगी. अभी क्वेश्चन है तो इसको मैं जल्दी से डिस्कस कर दे रही. दिस इज -6. इसी तरीके से अब आप क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं इससे. चलिए ठीक है, ये होगा हमारा फर्स्ट एलिमेंट. अब मुझे निकालना है सेकंड एलिमेंट के लिए. तो सेकंड एलिमेंट के लिए व्हाट आई नीड टू डू हियर, सॉरी, सेकंड एलिमेंट के लिए अब सेकंड एलिमेंट पे आ जाइए. सेकंड एलिमेंट का फिर से वही कॉलम और रो को हम डिलीट करेंगे एंड वी विल फाइंड द सेकंड एलिमेंट का माइनर. इसका क्या आएगा, दिस विल बी माई 14. क्लियर, दिस विल बी माई 14. No, this will not be 14. This will not be 14. This will be what? Sorry, -8 and this is -9. So this will be 17. Sorry, rather this will be 17. ये 14 नहीं होगा, this will be 17. Sorry, ये आपका 17 आ जाएगा with negative sign. The next will be your 13. Clear? अब आते हैं नेक्स्ट पे. अब जब इसका दूसरा वाला निकालेंगे तो फिर से सेम चीज आपने करनी है. अब इसके लोग निकाल रहे हैं तो इसके लोग का जो कॉलम है उसको हटाइए, इसका जो रो है उसको हटाइए. तो आपके पास आएगा -8 एंड -6. -8 एंड -6 विल बी -14. अब नेक्स्ट 4 इसके लिए निकालना है तो अलिंग इसका कॉलम और इसके लोग का जो रो है आपको उसको डिलीट कर देंगे. अब कितना बचा हमारे पास, नाउ -4 एंड +9. सो -4 + 9 विल गिव मी +5. Now go for the second one, second row and the third column. So we are left with 2 + 6. That will give me 8. अब आते हैं किस पे, अब आते हैं अपने लास्ट रो पे. लास्ट रो पे इसके अलॉन्ग जब आपको निकालना है तो इस अलॉन्ग का कॉलम और इसके अलॉन्ग का रो आप डिलीट करेंगे एंड यू आर लेफ्ट विथ -6 एंड -9. What is -6 and -9? That is -15. I hope it is clear how we are doing this. इसका मैं अभी क्वेश्चन कर रही हूँ. इस टॉपिक को मैं फिर से एक क्लास लेके डिस्कस करूंगी अच्छे से, हाउ टू फाइंड आउट माइनर्स एंड हाउ टू फाइंड आउट कोफैक्टर्स एंड बेसिकली हाउ टू फाइंड आउट एडजॉइंट. ठीक है, अभी नेक्स्ट कर देते हैं. अब लास्ट हमारे पास सेकंड लास्ट बचा है. सो वी आर जस्ट डिलीटिंग दिस रो अगेन अलोंग द सेकंड कॉलम. सो -3 एंड -6. -3 - 6 विल गिव मी -9 एंड नाउ लास्ट के अलोंग करेगा 3 - 4. 3 - 4 का मतलब होता है -1. अभी ये एडजॉइंट नहीं निकला. दिस इज जस्ट वी हैव फाइंड आउट माइनर्स. अभी सिर्फ ये माइनर्स निकले हैं. अब माइनर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट काम इसमें जो करना होता है, जो भी आपके ये है इनको आपने चेंज करना है, इनके साइन को. इसी तरीके आपने जाना है किस तरीके से, मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ उसका. देखिए मैं थोड़ा इंक पेन, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ले रही हूँ. इससे क्या होगा कि आपने इस तरीके से जाना है. यहाँ से जस्ट डोंट लिफ्ट योर पेन, ऐसे जाना है, चलते जाना है. देखो अब एक तरह से 2 बन गया है. तो जहां जहां पे हमारा एलिमेंट रुक रहा है, स्टार्ट विद प्लस प्लस माइनस प्लस, उसी कॉर्नर में चल रहा है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस. जहां से आप शुरू करेंगे वहीं पे आप पहुंच जाएंगे. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद नाउ,
अब हमारे पास जो बना है नया मैट्रिक्स वो क्या बनेगा, जस्ट वी नीड टू चेंज द साइन। तो ये क्या साइन हो गया, प्लस माइनस विल रिमेन -6 ओनली, दिस विल गिव 17, दिस विल बिकम 13, देन दिस विल हैव 14 बिकॉज माइनस माइनस प्लस दे देगा, ये 5 ही रहेगा, ये 8 बन जाएगा, दिस विल बी -15 अगेन बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस बना देगा प्लस का 9 और ये बना देगा माइनस का 1। नाउ इफ वी चेंज द साइन तो हम इनको क्या बोल देते हैं, कोफैक्टर्स। ये पहले हमने माइनस निकाले थे सिर्फ, अभी हमारे पास कोफैक्टर्स है, बट मुझे तो निकालना है क्या, मुझे निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा, एडजॉइंट निकालने के लिए हमें लेना पड़ेगा इसका ट्रांसपोज। सो देयर आर बेसिकली 3 methods to find out, 3 steps rather to find out adjoint. First of all, take minors, then convert them into cofactors by changing their sign, and then take the transpose of the cofactors. You will have now directly your adjoint. तो transpose का क्या मतलब होता है, convert your total row into one column. So -6, 17 and 13. Next will be 14, 5. Sorry, this was -8. ये मैंने देखा नहीं, माइनस का तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा. This is -8, and then next will be -15, 9 and -1. And you can cross check this with me if you are doing along with me कि आपका ये adjoint आना चाहिए. So now just put your values of A inverse into is equals to your formula. कितना आ जाएगा, 1/67 आगे ले लेंगे और बाकी की चीजें इधर लिख देंगे. -6, 17, this will be 13, this will be 14, 5, -8, -15, 9 and -1. देखो 5 मार्कर क्वेश्चन है, समझाने में टाइम लगेगा, इसलिए डोंट वरी कि बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, समझना तो पड़ेगा, ठीक है। दिस इज यहाँ तक अब आप करेंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन को करने के, लेकिन वो आगे बोल रहा है कि हैंस सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगर आप इसको देखो तो आपको यहाँ से ax और b निकालना मैंने सिखाया था, ax और b। ax यहाँ से a क्या होता है, a होता है ऑल द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड z। तो क्या बन जाएगा, पहला रो 1, 2, -3, दिस विल बी 2, 3, 2, then 3, -3 and -4. Clear? This one. And this is nothing but multiplying with x, y and z. और जो हमारे पास राइट हैंड साइड में आता है वो हमारा होता है p. This is -4, this is 14 and this is -15. ठीक है। अब अगर आप देखो, अब ये जो आपने a निकाला है, इस a को आपको मैच करना है अपने गिवन a से। क्या ये सेम है? Are we having the same? Just change this. चलिए ठीक है। पॉइंटर, ये हमारी पेन। चलिए पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए अब आपने देखना है कि क्या आपने जो ए निकाला है और जो गिवन ए है क्या वो दोनों सेम है। देखो अगर वो दोनों सेम है, अगर वो दोनों सेम है तो गुड इनफ। तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली यहाँ से क्या, देखो इसका मतलब होता है ax इक्वल्स टू b। इसका मतलब ये है कि इफ यू ट्रांसफरिंग दिस हियर तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी a इनवर्स इंटू b। मतलब आप यहाँ पे डायरेक्टली a इनवर्स की वैल्यू डाल देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे b के साथ। अगर आपका क्या क्या सेम है, अगर आपका ये वाला मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स से सेम है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो ये सेम नहीं है। क्या डिफरेंस है, यहाँ पे 1 2 3 है कॉलम वाइज, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 है रो वाइज। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज है। लेकिन हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि A ट्रांसपोज का इनवर्स सेम किसके होता है, A इनवर्स के ट्रांसपोज के। बात समझ में आई? यहाँ पे व्हाट वी नीड x इज इक्वल्स टू, हियर वी हैव A ट्रांसपोज, हमें उसका इनवर्स चाहिए। तो अब क्या निकालने बैठेंगे? नहीं, निकालने नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या होती है, देखो डैश इनवर्स चाहिए ना, लेकिन ये चीज इसी के बराबर होती है। तो इसमें अपने क्या करना है, जो आपने निकाला है अभी ये रहा, ये जो आपने निकाला है सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, आप उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। 1/67 को बाहर रखेंगे, वो ट्रांसपोज लेना आता है, इनवर्स ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो सिर्फ आपने इसका ट्रांसपोज ले देना है। -6 कैसे लेते हैं ट्रांसपोज,
convert into what? Row into column and column into row. 17, 5, 9. This will give me 13, then minus 8, then minus 1, and multiply this with your what? Minus 4, 14, and minus 5. And now this you can easily solve. This was equals to x, y and z. और अगर आप इसको देखो तो मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे वैल्यूज. इफ यू विल कैलकुलेट इट, आपकी वैल्यू x आएगा 1, y आपका आएगा 2 और z आपका आएगा 3. सो दिस इज, यू प्लीज चेक अकॉर्डिंगली, चेक योर कैलकुलेशंस एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि जो मैंने आंसर बताया है, आर यू गेटिंग द सेम और यू आर गेटिंग द डिफरेंट वन. सो मे बी आई थिंक इट्स क्लियर नाउ कि व्हाट टू डू इन द क्वेश्चन. देखो वही चीज है, अगर आपको डायरेक्टली दिया है, फिर से मैं बोल देती हूँ, अगर आपको ये वाला जो आपने गिवन आपको a है और यहाँ से जो आप a निकालते हो, अगर ये आपको डायरेक्टली वही चीज है तो इजिली है, इनवर्स उठाइए, मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर. बट अगर वो नहीं है सेम, इसका मतलब वो उसका ट्रांसपोज हो सकता है, तो आपने क्या करना है, इनवर्स का ट्रांसपोज लीजिए. बिकॉज एक प्रॉपर्टी होती है कि ये वाली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी, A ट्रांसपोज इनवर्स इज इक्वल्स टू A इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज. सिर्फ इतना करना है आपने, बाकी इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. आई होप इट इज क्लियर. नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32. Please don't forget to tell me the answers in the comment section. Whether are you getting the values of x is equals to 1, y is 2 and z is equals to 3. और अगर कुछ और आ रहा है तो please let me know again in the comment section. Now move on to question number 23. 23 क्या बोल रहा है आपके पास? Now if you see, find the equations of the line through the origin which intersect the line at angle of this. अगर आप इसको देखो, ये क्वेश्चन है हमारा 3D का. 3D का क्वेश्चन है. इक्वेशन ऑफ द लाइंस, दो इक्वेशंस ऑफ लाइन निकालनी है हमको, जो पास कहां से करती हैं, ओरिजिन से, और ओरिजिन से पास करते हुए इस लाइन को वो इंटरसेक्ट करती हैं किस एंगल पे? π/3 पे. दो लाइनें. क्लियर. अब अगर इसकी बात करें, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो इसमें पॉइंट क्या है हमारा? व्हाट विल बी द जनरल पॉइंट? एवरीबॉडी नोज हाउ टू फाइंड आउट जनरल पॉइंट ऑफ ए लाइन. दिस इज just dividing my code to my screen into 3 parts so that easily I can solve the question. This is y minus 3 is equals to 1 and this is equals to z by 1. Now take this is equals to lambda. So let's suppose the p is the general point. So how to find out? मैंने सिखाया हुआ है कैसे निकालते हैं जनरल पॉइंट. It will be 2 lambda plus 3. The next will be lambda plus 3 and this is lambda only. This will be the general point of p. Fine. Now अभी कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से. ये पॉइंट कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से. तो अगर एक पॉइंट तो ओरिजिन हो गया और एक पॉइंट ये होगा इसको कनेक्ट करता हुआ. सो कैन यू फाइंड आउट देयर डायरेक्शन रेशियोज? क्यों निकाले डायरेक्शन रेशियोज? अगर आपको याद हो कि हमें क्या निकालना है, हमें एंगल दे रखा है और एंगल का फॉर्मूला क्या होता है दो लाइंस के बीच में? दैट cos थीटा इज इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आपको याद हो ये फॉर्मूला होता है. एंड व्हाट आर a1 b1 c1? व्हाट आर दे? दे आर नथिंग बट डायरेक्शन रेशियोज. a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड सिमिलरली द सेकंड वाला का आ जाएगा यहाँ पे a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. तो समझ में आया कि हम क्यों निकाल रहे हैं इसके डायरेक्शन रेशियोज. तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे इसके? इट विल बी व्हाट? 2 लैम्डा प्लस 3 रहेगा क्योंकि माइनस 0 जब करोगे वो तो सेम रहने वाला है. सिमिलरली 2 प्लस 3 सॉरी लैम्डा प्लस 3 एंड लैम्डा. ये हो गए जनरल इक्वेशंस के. ठीक है. लेकिन जो नीचे दिए होते हैं वो भी तो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं कि नहीं होते? सो दूसरा डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया? दूसरा डायरेक्शन रेशियोज विल बी 2, 1, 1. क्लियर. अब बात करते हैं किसकी? अब उसने बोला है कि भाई इन दोनों लाइनों के बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है कितना? π/3 का. सो व्हाट वी कैन राइट? थीटा की प्लेस पे वी कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑफ π/3 और ये हमारा हो जाएगा दिस इज माय a1 b1 c1 and this was my a2 b2 and c2. So just put your values in the formula and calculate your answer accordingly. तो क्या वैल्यू आ जाएंगी? If I calculate this with you, this will be twice of 2 lambda plus 3 and plus 1 of lambda plus 3 plus 1 of lambda. और नीचे आपका अगर मैं आपको बताऊं तो ये कितना आएगा?
दिस विल बी, स्क्रीन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, चलिए कोई बात नहीं। सो कितना आएगा नीचे, नीचे आएगा 4 + 1 + 1 और इधर से हमारे पास आएगा 2 लैम्डा + 3 होल स्क्वायर प्लस लैम्डा + 3 होल स्क्वायर। बेसिकली हमको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है दिस। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, cos π/3 की वैल्यू क्या होती है, cos π/3 की वैल्यू होती है कितनी, 1/2। अब इतना भी नहीं आता होगा तो मैं क्या करूं, अब इसको if I solve it, दिस इज 4 लैम्डा, यहाँ से आएगा 5 लैम्डा और ये हो गया 6, तो टोटल बनेगा 6 लैम्डा। कैलकुलेशंस आप करेंगे, डोंट, मैं फिर से बोल रही हूँ, मेरी कैलकुलेशन मत देखिएगा। 6 + 3 ये हो जाएगा 9, तो अपनी कैलकुलेशंस करिए, मेरी को मत देखिए। नीचे अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, नीचे कितना आएगा, रूट में कितना आएगा, पहले यहाँ से 4 + 1 + 1, दिस विल गिव मी 6, एंड इफ आई सिंप्लीफाई दैट वन, यहाँ से मेरे पास आएगा 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 into 2 12, this is 12 lambda plus lambda square plus 9 plus 6 lambda and plus lambda square। तो अगर sorry why this fine, so last what we have, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 is equals to, if I see this is 6 lambda plus 9 और नीचे से if I calculate it will be nothing but √6 और यहाँ से आपके पास आएगा, देखिए 4 लैम्डा स्क्वायर एंड लैम्डा स्क्वायर, दिस विल गिव मी 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस यहाँ से 12 लैम्डा है और यहाँ से 6 है, तो ये बन जाएगा 18 लैम्डा एंड प्लस दिस विल बी 9 + 9, हाउ मच, अगेन दिस इज 18। नाउ यू सिंप्लीफाई दिस एंड यू विल फाइंड आउट लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 विल बी इक्वल्स टू 2 लैम्डा + 3। आप इसको जरा सिंप्लीफाई करिए, इस पोर्शन को, इसको करके यही आने वाला है, मैंने डायरेक्टली कर लिया है, तो ये मेरे को दिख रहा है कि ये बनेगा। एंड आफ्टर दिस यू नीड टू डू व्हाट, जस्ट डू स्क्वायरिंग बोथ साइड बिकॉज वी हैव रूट। तो आप क्या करेंगे, दिस विल बी दिस प्लस कितना आएगा, सॉरी दिस विल रिमेन 3 लैम्डा प्लस 3 और इसका अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो आपके पास आएगा 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12 लैम्डा। क्लियर, चलिए ये करने के बाद नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद, अब अगर हम इसको लास्ट पार्ट इसका सॉल्व करें बिल्कुल, तो कितना देगा ये मेरे को देगा 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब चेक करिए फिर से, अगेन आई कैन राइट इट, रीराइट इज लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 equals to 0. This is quadratic in lambda now, and what will be the factors? It will be lambda plus 1 and lambda plus 2. So these will be the two factors of this, और यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आती हैं, lambda will be -1 and lambda will be -2. So this is the question. देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, but basically calculation part is there. अब ये हमारे पास आ चुका है, अब ये हमें कहाँ रखना है, ये हमें रखना है अपने जनरल पॉइंट में, जो कि हमने एक जनरल पॉइंट निकाला था कि भाई जनरल पॉइंट कैन बी दिस वन, तो यहाँ पे रख देंगे। तो P की अगर आप देखो यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, जब आप लैम्डा इक्वल्स टू -1 करेंगे तो व्हाट विल यू गेट फ्रॉम हियर, यू विल हैव 1, 2 एंड -1, और जब आप लैम्डा इक्वल्स टू -2 रखेंगे तब दूसरा पॉइंट आएगा जो कि क्या होगा, -1 -1, this will be 1 and -2. I hope it is clear. लेकिन वो हमसे अभी भी पॉइंट नहीं पूछ रहा, उसने हमसे फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस पूछी है। इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी है पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइन है वो ओरिजिन से पास कर रही है। इसका मतलब जो हमारी बेसिकली लाइंस बनेगी वो क्या बनेगी, इसको यूज करके क्या बनेगा, इससे बनेगा x -0 बिकॉज ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स आर 0 0 0, सो डिवाइड बाई 1, यहाँ से y डिवाइड बाई 2 और यहाँ से z डिवाइड बाई -1। एंड सिमिलरली इफ यू यूज दिस पॉइंट अगेन, यहाँ से हमारे पास आएगा x अपॉन -1 इक्वल्स टू y अपॉन 1 equals to z upon -2. So these will be the two
equations of line which will pass through the origin which intersect the given line and at an angle of pi by 3. I hope it is clear. देखो 5 मार्क का क्वेश्चन है, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी. अगर आपको लगता है कि आपको प्लस माइनस करने के लिए दे दे तो दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 33. मैंने सोचा था कि जल्दी हो जाएगा, पर क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लग रहा है, बड़े क्वेश्चंस है. ठीक है. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 34. नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑफ इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन रादर. इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल. तो क्या करना है आपके इसमें? टेक दिस इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल. अब ये क्वेश्चन है प्रॉपर. दिस इज योर आई. व्हाट यू नीड टू डू हियर, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ना कन्वर्ट योर क्वेश्चन इनटू व्हाट? साइन एंड कॉस. दिस विल बी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स. तो नीचे से देगा ये आपका 1 बाई कॉस प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स. दिस इज योर क्वेश्चन. ठीक है. तो आप क्या, आपके पास क्या आ जाएगा? आई इज इक्वल्स टू, as soon as you say the question is sin, tan and secant, cosecant, cot, try to convert your question in sin and cos first of all. उससे क्वेश्चन क्या इजी हो जाता है. सो यहाँ से आपके पास आएगा x अपॉन, इफ यू सी all the terms have the same denominator, so we can cancel out all these. तो हमारे पास सिर्फ बचता है x sin x और नीचे से बचता है हमारे पास 1 प्लस sin x. देखो क्वेश्चन सिंपल हो गया. अब हमारा क्या करना है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी. अब हम लगाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 which is obvious property for all the types of maybe definite integral questions. क्या होती है? We need to change your variable with the sum of the limits and the variable itself. तो आप इसमें पुट करेंगे, क्या आएगा आपके पास? 0 to पाई. इंटीग्रल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. x को रिप्लेस कर देना पाई माइनस x से और ये बन जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस x अगेन. और नीचे से आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ पाई माइनस x. दिस यू विल हैव. क्लियर? दिस अप्लाई ब्रैकेट यहाँ पे. सो आपके पास क्या बनेगा? 0 टू पाई अगेन. नाउ पाई माइनस एक्स. व्हाट इज साइन ऑफ पाई माइनस एक्स? साइन ऑफ पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट यू हैव. सेकंड क्वाड्रेंट वी हैव द साइन अगेन, द पॉजिटिव साइन, एंड नीचे भी आपके पास क्या बन जाएगा? 1 प्लस साइन एक्स. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 एंड जस्ट मार्क योर इक्वेशन नंबर 1 व्हिच इज योर इनिशियल इक्वेशन यू आर गिवन. अब आपने क्या कर देना है? दिस इज सेम स्ट्रेटजी होती है सारे क्वेश्चंस में. 1 और 2 को आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. अब ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड भी ऐड होगा. i प्लस आई विल बिकम 2i. दिस वाज आल्सो इक्वल्स टू i. ये सेम ही चल रहा था अभी तक. तो राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा? 0 टू पाई. अगर आप देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सो वी कैन ऐड द न्यूमरेटर आल्सो. x sin x प्लस ओपन द ब्रैकेट पाई sin x माइनस x sin x. और नीचे डिनोमिनेटर इज सेम फॉर ऑल, सो 1 प्लस sin x. This will cancel out with this, and if you see this is 0 to pi and pi value is constant और हमारे पास बचता है सिर्फ sin x upon 1 plus sin. And this type of question we have earlier also we have done in what? Indefinite integration. अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या करेंगे इसमें? इसका नेक्स्ट स्टेप होगा just rationalize your question. Just rationalize. रैशनलाइज करते ही क्वेश्चन उधर ही खत्म हो जाना है. देखो इससे इजी नहीं होगा. सो आई की वैल्यू अगर मैं बताऊं, आई 2 को इधर ले आते हैं, पाई बाय 2 इंटीग्रल 0 टू पाई. अगर आप इसको देखो आपके पास बनेगा साइन एक्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स और नीचे आपके पास बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर. एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब होता है कॉस स्क्वायर. तो हम डायरेक्टली राइटिंग दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स. इसकी वैल्यू क्या आएगी? दिस विल बी पाई बाय 2 integral of 0 to pi. If you simplify this one, यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आएगा sin x upon cos square x minus sin square upon cos square. This is don't forget to write on dx. Please you don't forget to write on dx. dx बहुत जरूरी होता है हर क्वेश्चन में. हर स्टेप में आपने dx लिखना है. क्लियर? नाउ समझ में आया मैंने क्या किया? सिर्फ ब्रैकेट को ओपन करके आई जस्ट सेपरेटेड. तो क्या करना है इसमें? आई, अब आई कितना हो जाएगा हमारे पास? आई हमारे पास हो जाएगा पाई बाय 2. पाई बाय 2 कांस्टेंट वैल्यू उसको अलग रख लेते हैं. सेपरेट द लिमिट्स 0 टू पाई. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? साइन अपॉन कॉस. अगर आप एक कॉस के साथ कंबाइन करेंगे तो tan बनेगा इनटू में, और अकेले इसको करेंगे तो सीकेंट बनेगा. लिख लीजिए. माइनस 0 टू पाई सेपरेटिंग द लिमिट अगेन, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या देगा? tan स्क्वायर देगा.
ठीक है, अब तो क्वेश्चन सिंपल हो गया। दिस इज व्हाट पाई बाय 2। ये किसका होता है? ये होता है सीकेंट का। अगर याद हो तो ये सीकेंट का इंटीग्रल इसका होता है। सो 0 to पाई, लेकिन ये वाला तो नहीं होता ना, सो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये तो होता है कि नहीं होता? तो रख दीजिए वैल्यू यहाँ पे पाई बाय 2। पाई बाय 2 मतलब दिस इज व्हाट, इसको देखो, अभी अगर किसी को सीकेंट की पाई की वैल्यू याद ना आए तो क्या लिख सकते हैं इसको वी कैन राइट 1 अपॉन कॉस। इसमें रख दीजिए 1 अपॉन कॉस का मतलब 1 अपॉन कॉस पाई का मतलब -1, ठीक है, और माइनस 1 अपॉन कॉस 0 का अगेन मतलब 1, तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ से, और माइनस यहाँ से क्या बनेगा, इसका क्या होता है, ये होता है tan x का, माइनस इसका होता है x, और इस पे लिमिट रखनी है अगेन आपको 0 से लेके पाई पे, 0 से लेके पाई। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ फ्रॉम हियर, यहाँ से हमारे पास बचता है पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 ना, सॉरी जस्ट वेट, so what we are having here, pi by 2 is completely common for both the terms. Just don't forget to play out with this bracket. Now what we are left with here, यहाँ से आपके पास बचता है कितना, this is -1 and -1, this will give me -2। तो यहाँ की अगर आप बात करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से, -1। अगर आप पाई को रखते हो यहाँ पे, so tan pi will be 0 and minus pi, तो आपके पास बना माइनस पाई। Okay, fine. Now put your 0 with negative sign, tan 0 again 0, और ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से पूरी 0 वैल्यू आएगी, और आपके पास जो क्वेश्चन बनेगा, this is pi by 2 minus 2 plus pi, and we can further rewrite it. It is pi by 2 of pi minus 2. This will be your answer of this question. देखो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, देखो मेरे को समझाने में टाइम लग रहा है, अगर आपको आता है यू कैन डू दिस क्वेश्चन इन 5 to 7 मिनट्स, मैक्सिमम लगना भी है तो ना, मैक्सिमम अगर लगा तो आपको 10 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा तो लगेगा ही नहीं। 4 क्वेश्चन है, एक घंटे में, 1 घंटा आपके पास अभी बाकी है, बिकॉज अर्लियर सेक्शंस वी हैव कंप्लीटेड इन 2 आवर्स, तो इन 4 क्वेश्चन के लिए वी हैव 2। तो अगर आप 10-10 मिनट भी लेते हो ना, तो 40 मिनट में आप चारों क्वेश्चंस करने के बाद भी आपके पास 20 मिनट बचेंगे आपके पूरे पेपर को रिवाइज करने के लिए, या कुछ आपने छोड़ा है तो। सो देखो इसमें कुछ नहीं था, क्या किया आपने, सिर्फ आपने क्वेश्चन को देखो, जिसको साइन और टैन में क्वेश्चन करना नहीं आता, ये मैंने उसके लिए समझाया है कि क्वेश्चन को आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन इजी हो जाता है। प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, रैशनलाइज करिए, उसके बाद तो सेपरेशन और लिमिट पुट करते जाइए, आपका आंसर डेफिनेटली अपने आप आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, एवरीबॉडी विल डू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, इसी का और पार्ट है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, दिस क्वेश्चन अगेन आई डिस्कस्ड इन द क्लास। इसमें एक्चुअली ये क्वेश्चन ना अकेला नहीं है, ये क्वेश्चन है 2-3 क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा समझाऊंगी लेकिन वहां पे छोड़ दूंगी जहां पे मैंने इसे किया हुआ है ऑलरेडी आपके साथ, जहां से आप आगे कर सकते हो। देखो क्या करना है, अब फिर से इसमें लिमिट दी है, तो सबसे पहला काम है लिमिट को रिप्लेस करना, x को किससे, पाई माइनस एक्स को, तो ये हो जाएगा 0 to पाई, और log ऑफ यहाँ से ये देगा 1 plus cos ऑफ पाई माइनस एक्स, ठीक है, ये देगा ये आपके पास। ये देने के बाद अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0 to पाई 1 plus cos पाई माइनस एक्स का मतलब होता है किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट, cos में वहां पे होता है cos नेगेटिव, तो ये कितना दे देगा, ये बनाएगा आपके पास 1 माइनस log ऑफ 1 minus cos x, ये दे देगा। सो दिस वाज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकंड। सो अगेन नाउ सेम चीज रिप्लेसिंग के बाद हमें ऐड करनी होती है, आपके पास बनेगा 2i इक्वल्स टू 0 to पाई। अब log के साथ जब दोनों को ऐड करोगे तो log की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दोनों एडिशन में है तो वी कैन मल्टीप्लाई देम, 1 plus cos and 1 minus cos। उसके बाद ये दे देगा 0 to पाई log ऑफ, ये देगा 1 minus cos स्क्वायर, 1 minus cos स्क्वायर का मतलब होता है sin स्क्वायर dx,
ठीक है, उसके बाद I की वैल्यू कितनी हो गई, इट विल बी 0 to पाई 1/2। लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये पावर आ जाएगी आगे 2 log of sin x dx, और ये हट जाएगा यहाँ से। अब जो क्वेश्चन नया क्वेश्चन बना है वो है 0 to पाई log of sin x cos x, sorry sin x of dx। This is the new question. Clear? Now again we can break। now ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई की थी, प्रॉपर्टी नंबर 4। अब एक और प्रॉपर्टी हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि हमारे पास लिमिट को ब्रेक करने की प्रॉपर्टी है। वी कैन राइट इस लिमिट 0 to π/2। नाउ 180 को हमने 90 में ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल। तो दिस विल गिव मी log of sin x dx। अब फिर से रिप्लेसिंग करेंगे x किससे, π/2 माइनस x से। सो क्वेश्चन किससे बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 log of sin of x sin x π/2 माइनस x। तो क्या बना देगा, फिर से वो बना देगा cos x dx। अब दिस इज माई 3 एंड दिस इज माई 4। सो व्हाट you will have from here, चलिए तो क्या बन जाएगा यहाँ से, अगेन 2i विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, अब 4 मत लिख देना, 2 + 2 कॉमन लिया है। सो दिस विल गिव मी 0 to π/2 log ऑफ, अगेन साइन प्लस कॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin x cos x, ये बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो मैंने क्लास में भी करवाया था। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने इसमें किया था डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2, ताकि हम फॉर्मूला बना सके sin 2x का। दिस विल कैंसिल आउट, तो i की वैल्यू जो हो जाएगी, i की वैल्यू आपके पास आएगी 0 से लेके π/2 की, और ये बन जाएगा log ऑफ sin 2x का फॉर्मूला। ऊपर तो sin 2x का बन गया, लेकिन नीचे भी तो है, तो उसको ले जाते हैं अलग से log 2, क्योंकि we can again apply the property of log a by b which is equals to log, क्या होती है, log a by b की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऊपर लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, कि अगर दो है फंक्शन ऊपर नीचे log, तो we can write it what, we can write it log a minus log b। I hope it is clear। देखो अभी तक हमने सिर्फ a की प्रॉपर्टी को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। So what is next now, this will give me what now, this is the constant quantity, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसको देखो, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू द थिंग वी हैव अर्लियर, लेकिन यहाँ पे sin x था, यहाँ पे sin 2x है, कोई बात नहीं, उसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं I1, इसको थोड़ा अलग से सॉल्व कर देती हूँ। सो I1 मान लेते हैं। I1 को कैसे करना है आपने सॉल्व, ज्यादा फिक्र की बात नहीं है, बस एक ही क्वेश्चन बाकी है। सो I1 क्या हो जाएगा हमारा, I1 विल बी 0 to π/2 log ऑफ sin 2x। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पुट योर 2x is equals to t, your dx will be equals to dt by 2, और क्वेश्चन बन जाएगा I1 is equals to what, तो स्क्रीन में अपने आप मूव होती रहती है। 0 to π/2 log of sin t dt। बात समझ में आ रही है, कोई परेशानी है तो बोलिए, ठीक है। और dt के साथ ये 1/2 आगे ले आते हैं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब क्या बनेगा, नाउ I will be equals to what, अब ये क्वेश्चन को अगर आप देखो तो ये क्या है हमारा, ये देखो यहाँ से, दिस वाज I, दिस इज I, ये क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ से I है ये हमारा, ठीक है। तो व्हाट कैन वी राइट, और अगर यहाँ से भी ना तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 3, सी इक्वेशन नंबर 3, log sin x dx log sin t dt 0 to π/2 0 to π/2, ये हमारी किसकी वैल्यू है, I की वैल्यू, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, दिस विल बी माई I डिवाइड बाई 2 माइनस
अब t वेरिएबल है, एक और हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, यू कैन इजीली चेंज योर वेरिएबल। t है तो dx में ले आए, dx तो dt में ले जाए, कोई इफेक्ट नहीं पाता इंटीग्रल पे। और माइनस क्या बचेगा साथ में, अब ये ध्यान से देखो यहाँ पे ये बचा हुआ है, इधर भी तो था हमारे पास log t, तो यहाँ से हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं दोबारा से। ये होगा i/2, ये log 2 कांस्टेंट है तो ऐसे रहेगा, इंटीग्रल 0 to π/2 इसके साथ भी आएगा, वो तो यहाँ पे ब्रैकेट में साथ था इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i को हम इधर ले आते हैं, i माइनस i/2, सो i माइनस i/2, और यहाँ से कितना बचेगा, दिस इज i, ऐसे माइनस log 2 इंटू dx का इंटीग्रल होगा x, और x पे जब आप लिमिट करेंगे 0 से लेके π/2 तो आपकी वैल्यू आएगी π/2 ओनली। और यहाँ से आपके पास i माइनस i/2 का मतलब होता है i/2 ओनली, and this will give me minus log 2 into π/2, log 2 into pi, log 2 minus π/2। now the last step, i आपको क्या आ जाएगा, आप इसको उधर ले जाइए, -2 log 2 π/2, this will be your value, rather 2 को हम ऊपर ले जा सकते हैं तो log 4 हो जाएगा, log 4 π/2। I hope it is clear, very simple question, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बट इसमें क्या थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे उसने हमें 1 + cos दिया, तो मैं अगर ये पेपर में देखो और में अगर ये क्वेश्चन आता है ना पेपर में, सो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आप दूसरे वाला ट्राई करो, क्योंकि इससे ना क्वेश्चन बहुत बड़ा है और गलती होने के चांसेस फिर हो जाते हैं। जिसको आता है गुड इनफ, यू कैन गो, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं कर सकते, बट जिसको आता है दे कैन गो, लेकिन जिसको नहीं आता है उसको थोड़ी सी परेशानी होगी इसको करने में, बिकॉज दिस रिक्वायर लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस ऑल्सो एंड लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज भी आपको याद होना चाहिए। सो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सिर्फ लेंथी है, और लेंथी है इसका मतलब आपने क्या है, इसमें ये बार बार रिपीट होती है चीजें। आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन जो फटाफट से हो जाएगा। हमसे पूछा है, एक फंक्शन दिया है हमें fx, इसमें हमें जो फंक्शन दिया है ये वो पूछ रहा है कि आपको बताना है कि फंक्शन 1 1 है और on 2 है। अब अगर आपको बताया हो, मैंने 1 1 और on 2 बहुत अच्छे से प्रूव करना सिखाया है। 1 1 आपने क्या करना है कि आपने लेना है कि फंक्शन जो आपको दिया है वो 2 पॉइंट्स पे सेम है, और अगर आप प्रूव कर देते हो कि x1 बराबर, वो जो दोनों पॉइंट्स आपने लिए हैं अगर वो दोनों पॉइंट्स भी सेम है देन फंक्शन इज ऑन टू। तो शुरू करते हैं यहाँ से कि फंक्शन fx इक्वल्स टू f of x2। तो यहाँ से क्या आएगा, दिस इज 9x1 हो जाएगा, 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इक्वल्स टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। ठीक है, इफ यू कैंसिल आउट दिस एंड दिस, आपके पास क्या बचेगा, अब x1 स्क्वायर वाली वैल्यूज को थोड़ा अलग कर लीजिए, x2 स्क्वायर, और यहाँ से आएगा 6x2 माइनस 6x1, और यहाँ से इफ यू टेक कॉमन 9 ऑफ x1 माइनस x2, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, और यहाँ से 6 ऑफ माइनस 6 ऑफ x1 माइनस x2। तो अगर आप यहाँ से देखें तो ये चीज हमारे पास कॉमन आ रही है दोनों में से, एंड फ्रॉम हियर वी कैन से x1 इज इक्वल्स टू x2। और अगर ये दोनों सेम है इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या है, 1 1। इसका बेसिकली पार्ट जो आपको गलत होगा या फिर जो आपको नहीं आएगा होता है ऑन टू प्रूव करना। ऑन टू का मतलब क्या होता है कि फॉर एवरी, क्या होता है, फॉर एवरी y belongs to the second set there exist x belongs to capital X such that your f of x equals to y। ये होता है, दिस इज द डेफिनेशन। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने लेना है क्या, एक y ले लेना है, let the y belongs to this, so there exist x belongs to x such that कि आपका जो fx है, आपका जो fx है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस 5, दिस इज इक्वल्स टू सम y। और अगर ये सम इक्वल्स टू y है, इसका मतलब आपने जो क्वेश्चन को, आपका क्वेश्चन अर्लियर वाज इन टर्म्स ऑफ x, तो आपने उसको कन्वर्जन कर देना है y में, कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, अब ये पूरा y का वैल्यू मैं यहाँ पे सिर्फ x रख दूंगी। कैसे, अब देखिए इसने बेसिकली आपको इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, x को इधर नहीं जा सकते, y को क्लब नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो क्या करना है, whenever you have quadratic equations and you need to convert your question in terms of x, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने करना है अपने क्वेश्चन को बनाना है परफेक्ट स्क्वायर।
परफेक्ट स्क्वायर मैंने आपको इंटीग्रेशन में बनाना सिखाया था, एंड दिस यू हैव डन इन 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो। नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर, उसके लिए आप इसका क्या करें, 9 कॉमन ले लीजिए। यू शुड हैव ए लीनियर इक्वेशन विद द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी 1 प्लस कितना आएगा ये 6/9, 6/9 का मतलब 2/3x minus 5/9। ये होने के बाद now we'll convert this question how 9 of this will give me what, यहाँ से आपके पास आएगा कैसे बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2/3x माइनस 5/9। अब जो भी वेरिएबल आपका होता है ना इसका देखो एक तरीका तो ये है कि आप इसमें से कॉमन लेके बना दो, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे आप प्लस माइनस करेंगे किसका, इसका हाफ, इसका हाफ क्या आएगा 1/3 का स्क्वायर और माइनस 1/3 का स्क्वायर, इसको आप बनाएंगे एंड यू विल हैव 9 ऑफ, यहाँ से आपके पास बनेगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, दिस इज माइनस 5/9, दिस इज माइनस 1/9, सो माइनस 6/9, दिस यू विल हैव इक्वल्स टू दिस। आई होप आई एम क्लियर विद यू। तो इसको अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें रादर तो कितना हो जाएगा ये, इस 9 को क्या करते हैं, इस 9 को ले आते हैं किधर, तो बेसिकली x की वैल्यू चाहिए ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो अगर इसको करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 इक्वल्स टू y। देखो ध्यान से कैसे, क्योंकि जब आप इसको अंदर लेके जाओगे ना, ये तो देखो अगर ब्रैकेट में से ये बाहर आया होता, 3 बाहर आता स्क्वायर के साथ तभी तो 9 बनता ना, और यहाँ से अगर आता तो इसके साथ 3 होना चाहिए था तभी तो ये बाहर आएगा, तो यहाँ पे अकेला बच गया ये। लेकिन यहाँ पे भी तो 1/3 में से बाहर निकलेगा तभी तो ये 1 बनेगा या नहीं बनेगा, ये इसके साथ यहाँ पे 3 आएगा, इसके साथ 3 आएगा, 3 से 1 कट के 1 बच जाएगा। तो ये आपके पास एक बेसिकली आना चाहिए, और इसके साथ करेंगे तो -6। तो इसको आप लिख सकते हैं 3x प्लस 1 होल स्क्वायर। देखो मैं फिर से 1 समझाऊंगी जब टॉपिक वाइज, तब मैं इस चीज फिर से समझाऊंगी, अभी तो मुझे थोड़ा जल्दी थी इसलिए मैं इसको फटाफट करवा देती हूँ। y प्लस 6, तो 3x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली मुझे x की वैल्यू निकालनी है, रूट ओवर y प्लस 6, और 3x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, रूट ओवर y प्लस 6 माइनस 1, और इसको भी हटा दो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 3। तो ये वो x है जो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, किसके लिए, ये वो x है जो हमेशा एग्जिस्ट करेगा इस y के लिए। अब हमने लिख तो दिया कि सच दैट fx इक्वल्स टू y, लेकिन वो मुझे प्रूव भी करना है कि fx x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे पूरा x के प्लेस पे वो पूरा आ जाएगा जो कि आपने क्वेश्चन में दिया है, -1 डिवाइड बाई 3, दिस विल बी f ऑफ x। और हमें प्रूव करना है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है y के। कैसे करेंगे, अब इस वैल्यू को आपको कहाँ पुट करेंगे, इस वैल्यू को आपको पुट करेंगे, ठीक है। अब अगर आप इसको देखो तो ये चीज थी किसके इक्वल, ये देखो ये इसके इक्वल, ठीक है। तो अपने क्या कर देना, आपने इसको पुट कर देना, कैसे करिए इसको, I will put this value 9 of root over this minus 1 divided by 3 whole square plus 6 of root over y plus 6 minus 1 divided by 3 minus 5। बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन बहुत टफ होगी, इजी बन जाएगी। देखिए इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 9 ऑफ के बाद ये देगा हमें y प्लस 6 प्लस 1 माइनस ट्वाइस रूट ओवर y प्लस 6, ठीक है। और नीचे से आ जाएगा इसके पास 9, ये 9 और 9 हट जाएगा यहाँ से। दूसरी टर्म क्या है हमारे पास, इसको अगर आप देखो यहाँ से ये कट जाएगा, ये बनेगा 2, तो यहाँ से आएगा प्लस का 2 रूट ओवर y प्लस 6 माइनस 2 माइनस 5, क्लियर। और अगर आप देखो ये प्लस का भी हट जाएगा किसके साथ, इसके साथ। अब मेरे पास क्या बचता है, ऊपर से y प्लस 7 इज इक्वल्स टू माइनस 7, ठीक है। और इसको भी कैंसिल आउट करके कितना बन गया, y। तो वी हैव प्रूव्ड दैट फॉर एवरी y बिलोंग्स टू दिस देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट fx इक्वल्स टू y। क्योंकि जो आप लिखते हो ना कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x, वो बेसिकली आप जो निकालते हो ये वही x होता है, क्योंकि आपने बोल तो दिया बाय डेफिनेशन की x एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो x होगा क्या, तो वो भी आपने बताना है, इसीलिए हम इसको निकालते हैं।
और फिर इसको हम वापस पुट करके यहाँ पे कि एफ एक्स, जो हम दूसरी कंडीशन लिखते हैं कि एफ एक्स शुड बी इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ पे हम उसको प्रूव करते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू वाई होगा। क्लियर? सो दिस वी हैव प्रूव, दिस इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, और अगर ये वाई है तो इट विल बी ए onto, it will be an onto function. I hope I am clear with this. So these were the all questions of sample paper 1 which CBSE has given on the website, section A, B, C, D, E. Now we have covered all the questions. I hope I am clear with every question. अगर फिर भी नहीं समझ में आता है, please do comment and please tell me in the comment section. आप करेंगे, बताएंगे, तभी मुझे पता चलेगा, क्योंकि otherwise मुझे नहीं पता चलेगा what we basically need to do. Clear? उसके बाद now in the next class maybe I'll start with the next sample paper or maybe with the fresh topic, because now I really want to revise all the topics with you guys. Fine? Now again you do this and complete your paper. I hope everything is clear cut now. Now we'll move very soon in the next video with the fresh topic or with the fresh questions. Till then you complete it. And again, if you like it, share with your friends also. With any student of any school, doesn't make any difference. Students are students, सब सेम ही होते हैं. Stay connected for the more information, क्योंकि मैं वीडियो डालूंगी तभी आपको पता चलेगा. Please turn on your notification. वहाँ पे जो बेल आइकन वाला होता है, नोटिफिकेशन आप टर्न ऑन करिए कि वीडियो डालूंगी. बार बार कई बार मैं व्हाट्सएप में लिख देना भूल गई, नहीं या तो एक अलग चीज हो जाएगी. तो आप उसमें जाइए, उसको पढ़िए, उसको करिए, और वहां से आपको जो भी फ्लैश मिलेगा आप उसको प्लीज करिए. दिस इज फॉर योर बेनिफिट, नॉट फॉर माइन. इसमें मैं बार बार क्लास में समझा चुका हूँ, वरना तुम लोग फिर मेरे से पिटाई खाओगे अच्छे से. ठीक है? तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा. पिटाई नहीं खाओगे, जिससे बोल रही हूँ सच्ची. मैं बच्चों को नहीं मारती, छोटे बच्चों को नहीं मारना चाहिए. छोटे छोटे स्वीट बच्चे हैं तुमको. ठीक है, चलिए. नाउ thank you for watching and good night, and please practice hard. Okay, thank you so much.